हाँ ठीक है आवत्ते करो Yes, sir. Yes, sir. आदरणीय श्री जुल्फिकार हसन, अतिरिक्त महानिदेशक मुख्यालय एवं परिचालन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, डॉक्टर किरण मोदी, फाउंडर एंड उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, कावा की सम्मानित सदस्याएं एवं वेबिनार से सीआरपीएफ कल्याण महानिदेशालय की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था ने अपनी 25वीं वर्षगांठ दिनांक 22 जून 2020 को मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर एक वार्षिक गतिविधि कैलेंडर जारी किया था, जिसके तहत मार्च जनवरी 2021 को विषय बेटियों के प्रोत्साहन हेतु के प्रति जागरूक करने संबंधी कार्यक्रम हेतु चयन किया गया है। इस संबंध में अब मैं सुश्री चारू सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक श्रीनगर सेक्टर, जो कि स्वयं विमेन एम्पावरमेंट जैसे विषय पर सक्रिय रूप से जुड़ी हैं, से आग्रह करना चाहूंगा कि वो आज के विषय पे अपनी प्रस्तुतिकरण दें। आईजी मिस चारू सिन्हा मैम। थैंक यू। गुड इवनिंग everybody. Good evening, sir. So the presentation which I am going to be making today is about how we can encourage our girls towards independence. The idea is to take a look at girls and women in the age group from 15 to 30 years and then see what we can do with this group of women and girls who are available with us in our GCs. So what we had in mind was a timeline. In case this is acceptable to everybody and this particular proposal resonates with everybody, once an approval is given, we intend to hold a video conference with DIGs of all the 38 GCs where families reside. And after a video conference with DIGs of all the 38 GCs, in which we will explain to them step by step how the program needs to be rolled out, within 7 days of this video conference, we can launch the program. The idea is to cover about 12,500 girls across 38 GCs in the age group of 15 to 30 years. That means there will be approximately about 300 girls per GC, depending on the age group. The program will be run in different batches of about 50 girls in each batch. And there are some verticals which I will explain to you shortly. 2 sessions we will conduct centrally through the Srinagar sector for each vertical except the vertical of driving, and we will duly identify certain experts from the domain for each vertical. I will request Yuvraj, I hope the slides are being shown there. Yes ma'am, slides are available. Right. So run through the slides after the timeline. Could you go on to slide number 4? The 5. So the first vertical is a vertical on digital literacy. Then comes net banking. Then comes basic English speaking and communication skills. The 4th vertical would be household financial management, and the 5th would be driving. Ma'am, share please. वैसे वीडियो में उनसे बोलिए शेयर कर दो स्लाइड्स में. अच्छा, please hold on. I'll share it. प्लीज और वॉल्यूम भी आप कर देना मैम को वैसे. Can you see it now? Yes ma'am, visible now. मैं उसको प्रेजेंटेशन मोड पे कर दूँ. So these are the 5 verticals: digital literacy, net banking, basic English speaking and communication skills, household financial management, and driving. The first vertical would be digital literacy. The objective is to educate the wives and daughters of our personnel to use internet
and gather knowledge online for their personal as well as professional growth. The second vertical would be driving, that is to enable them to drive a two-wheeler or and a four-wheeler in order to be independent, to be so that they are not dependent on any other member of the family to drive them around. The third would be English speaking and communication skills to for them to understand, read and write basic English, which will help them to communicate with people and express themselves more effectively. Then the next vertical is on net banking to enable them to conduct banking transactions online in a safe manner. And of course, household financial management is very important to for them to be able to run the household. What we have in mind is that the digital literacy part, the earmarked GC will nominate 2 instructors, preferably from the Signal branch. The duration of the course can be just about 1 week for a batch. Up to 5 computers with internet connection can be provided by the GC in a classroom. And emphasis will be on making the participants aware about internet and MS Office, and also accessing various knowledge-based websites. Driving is another vertical where the GC can nominate an officer and 2 instructors from the empty fleet who will teach the women how to drive a two-wheeler and a four-wheeler. Vehicles can be selected and provided for the training by the group center. Again, the size of the batch, it depends on how many women are there in that particular age group which we would like to target. It could be 50, it could be less also. Ideally, this can be a 3-week course. It depends on how easily the women are able to grasp the subject, and then it could be extended to 4 weeks if required. We would also be requesting the GC to liaise with the local RTO to issue a learning driving license to the trainees, and they can get a permanent license after that, which the GC can facilitate. Basic English speaking and communication skills is again what we have in mind, because this is very important in today's world. We thought that if the lady officers, lady wives, or teachers of Montessori schools in GCs can be nominated, or they can volunteer to teach basic English language to the daughters and spouses of CRPF personnel. Some of them might already be knowing English. All that is needed is a little more help in being able to speak it fluently. Some might not know much, so then we will have to start from scratch. The wives and daughters of the personnel will be taught basic English and effective communication to help them read, write, and speak fluently. And the duration could be from 4 to 8 weeks. It could be less, it could be more, depending on the particular group and the needs and requirements of that particular group. The group center can actually nominate 2 instructors again from the Signal branch for net banking. They can tie up with SBI for educating the women and making them more aware about the benefits of net banking and how to go about it. The duration can be just about a week or so. The course emphasis will be on learning how to operate accounts online, ensuring safety of transactions, understanding different frauds which are perpetuated by fraudsters, and learn adequate precautions to protect against such attempts. Household financial management is another important vertical where a tie-up with SBI will be required for making women more aware about various government schemes and investment possibilities. Also understand how to run the household finances within the salary that is available. And this duration could also be about 1 week for one batch. And so that's it from my side. I end with this quotation from Aung San Suu Kyi: "The education and empowerment of women throughout the world cannot fail to result in a more caring, tolerant, just, and peaceful life for all." Thank you. That's it from my side. And if there are any questions, or if any DLGs of any GCs have any suggestions, that is welcome. थैंक यू मैम। अब मैं श्री जुल्फिकार हसन, अतिरिक्त महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो आज के विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार व अनुभव से हम सभी का मार्गदर्शन करें।
सर। Good afternoon, ladies and gentlemen. The DG is busy with a unscheduled meeting which has come up, so I am filling up in his place. Firstly, I'd like to thank Charu for a short but a very effective presentation in which she has covered very important aspects. This has come after a lot of field work by Charu and a lot of experience in this field, and she's identified these skills which are required for not only empowering the women who are there in our GCs, but also ensuring that the man on the ground is free from a lot of stress, because these basic functions, if the daughters and wife can perform, there will be so much less pressure on the man on the ground. Anyways, I think this topic is very important for everyone, and there is no point in harping on it. I now request our chief speaker to make a request. थैंक यू सर। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों एवं उनके परिवार को बेटियों को प्रोत्साहित करने हेतु उनके जीवन को संवारने के संबंधी जानकारी देने के लिए हमारे बीच प्रतिष्ठित प्रवक्ता डॉक्टर किरण मोदी उपस्थित हैं। मुझे आशा है कि उनके विचारों से आप सभी को विभिन्न जानकारी प्राप्त होगी, जो कि हमारे लिए आपके लिए लाभप्रद होंगी। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के उन सभी कार्यालयों को भी वेबिनार के माध्यम से शामिल किया गया है जहां हमारे अधिकारी एवं कार्मिक अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग विशेषज्ञ के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान भी कर सके, तथा उक्त कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सीआरपीएफ यूट्यूब एवं फेसबुक पर भी किया जा रहा है। वक्त जाया न करते हुए अब मैं श्रीमती किरण यादव, पत्नी श्री अंशुमन यादव, आईजी इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, जो आज के कार्यक्रम में कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रही हैं, को रजत जयंती लेक्चर सीरीज के तहत बेटियों के प्रोत्साहन हेतु कार्यों पर हमारे बीच मौजूद विशिष्ट प्रवक्ता डॉक्टर किरण मोदी का संक्षिप्त परिचय सभा में मौजूद तथा वेबिनार से जुड़े व्यक्तियों से कराएं, साथ ही आज के महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए उन्हें आमंत्रित करें। मैम, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं किरण यादव हमारे सीआरपीएफ परिवार कल्याण संगठन के रजत जयंती समारोह के वार्षिक कार्यक्रम की श्रृंखला में बेटियों के प्रोत्साहन विषय पर आयोजित आज के कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण श्री जुल्फिगर सर हसन, एडीजी ऑप्स को मैं अभिवादन करती हूँ, और हमारे वरिष्ठ मुख्य वक्ता डॉक्टर किरण मोदी, कार्यवाहक अध्यक्षा कावा श्रीमती तनुजा भंडारी, मेंटर श्रीमती रितु अरोड़ा, सभी सीनियर लेडीज व सभी सीईसी मेंबर्स एवं वेबिनार से जुड़े सभी अधिकारीगण, कार्मिक एवं पारिवारिक सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ में नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद हमारे देश की बेटियों ने शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं खेलकूद आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कार्यकुशलता को सिद्ध किया है। सीआरपीएफ में भी हमारी 6 महिला बटालियनें देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान दे रही हैं। इसके बाद भी हमारे देश की महिलाओं में की स्थिति में सुधार की काफी गुंजाइश है। हमें देश का विकास करना है तो देश की महिलाओं का विकास करना आवश्यक है। बेटियों के प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। सीआरपीएफ भी इस ओर कार्यरत है एवं कावा द्वारा भी बेटियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे स्पर्श दी मदर्स टच एम एवं CWA स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। इसके अतिरिक्त कावा द्वारा समय समय पर बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करवाए जाते हैं। आज बेटियों के प्रोत्साहन विषय पर प्रकाश डालने हेतु हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर किरण मोदी, जिनका हम सब स्वागत करते हैं। डॉक्टर किरण मोदी उज्जैन केयर संस्था की फाउंडर एवं मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। इन्होंने IIT दिल्ली से डॉक्टरेट की है। इन्होंने दिल्ली में अनाथ एवं प्रत्येक बच्चों के लिए उज्जैन केयर एवं प्रथम उज्जैन होम आरंभ किया। इसके अतिरिक्त वह अन्य कई संस्थानों के संस्थापक सदस्य भी हैं। इसके साथ साथ आपको मीडिया के क्षेत्र में भी काफी अनुभव है। डॉक्टर किरण मोदी ने भारत के 5 राज्यों में यूनिसेफ, टाटा ट्रस्ट एवं लोकल गवर्नमेंट की सहायता से करंट अफेयर आफ्टर केयर प्रैक्टिसेस पर सेमिनल रिसर्च की है। डॉक्टर किरण मोदी उज्जैन केयर संस्था के अतिरिक्त लिवर केयर फाउंडेशन की फाउंडर एवं मैनेजिंग ट्रस्टी और उमंग चिल्ड्रन थिएटर की फाउंडर ट्रेजरर भी हैं। डॉक्टर किरण मोदी को बहुत से प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मान
सम्मानित किया गया है, जैसे नेशनल अवार्ड फॉर चाइल्ड के वेलफेयर 2014, इंडिया हाईएस्ट कमेंडेशन फॉर ए नॉन प्रॉफिट चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर किरण मोदी ने उसी उत्साह और जोश के साथ वंचितों के साथ अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में प्रयास करना जारी रखा है, जैसा उन्होंने शुरू किया था। मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर किरण मोदी जी से कि वे आज के विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। मुझे विश्वास है कि हम सभी डॉक्टर किरण मोदी जी का व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत के लिए। सबसे पहले तो डॉक्टर AP माहेश्वरी जो डीजी हैं और इन एब्सेंशिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये सुनहरा मौका दिया तो कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूं। मिस्टर जुल्फिकार हसन ADG, आप यहाँ मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी में मैं जो भी कहना चाहूंगी, मुझे उसके लिए बड़ा सौभाग्य महसूस हो रहा है कि आपकी मौजूदगी में मैं अपनी बात रख पाऊंगी। सभी उपस्थित अधिकारीगण एवं 30 लाख से ज्यादा आई एम टोल्ड CRPF परिवारों के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो डिजिटली यहाँ प्रेजेंट हैं, तो दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज का विषय है महिला सशक्तिकरण। जैसा हम सब जानते हैं, हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है और ऐसे में महिला अधिकार, महिला पुरुष समानता, महिला सशक्तिकरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर काम करना, जिसे कायम कराना, यह एक बहुत बड़ा हमारा नैतिक दायित्व है। अभी अभी किरण जी ने कहा कि बहुत कुछ गुंजाइश है, तो मैं सोचती हूँ ये काफी हमने वो बोला है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बहुत कुछ करने की जरूरत है, तभी हमारे समाज में स्त्रियों को भी उतनी ही अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी जितना कि पुरुष को मिलेगा। बचपन से सुना था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यही सुन सुन के बड़े हुए थे, लेकिन साथ ही साथ उसी सांस में यह भी बार बार सुना था, ढोल गवार शूद्र अरुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। आप इनको कैसे बैलेंस करेंगे? एक तरफ देवी, एक तरफ पांव की जूती। इस तरह के समाज में हम लोग सब बड़े होते हैं। जस्टिस लीला सेठ का नाम आप लोग सबों ने सुना होगा। उन्होंने कहा था, वी ऑल नो दैट विमेन आर हाफ द वर्ल्ड एंड होल्ड अप द स्काई, बट वेयर आर दे व्हेन इट कम्स टू इक्वालिटी। जब समानता की बात होती है, कहाँ है महिलाएं? यह हमारे मन में है, ये हम सोचते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सदियों से महिलाएं पितृसत्तावाद से जूझ रही हैं। एक तरफ देवी, दूसरी तरफ उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी हालातों का सामना करना पड़ता है। जन्म से पहले ही भ्रूण हत्या, जन्म के बाद शिशु हत्या, और अगर बच भी गए तो निरंतर संघर्षमय जीवन, दूसरों पर आधारित जीवन, बचपन में पिता और भाई का सुनना, बड़े होकर पति और ससुराल में। ऐसे में अपना स्व कैसे बनेगा? खाना अगर हो तो पहले भाई को मिलेगा, पढ़ाई हो तो भाई को मिलेगी, कुछ बचा खुचा हो तो बेटी के हाथ आएगा। बाद में पहले पति और बच्चे। एक महिला के स्वास्थ्य को और उसकी वैचारिक प्रबुद्धता की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने शायद इसीलिए संदेश दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक ऐसा संदेश है जो इस समाज के भयावह सत्य को इंगित करता है और इस दिशा में कार्य करने की जरूरत बताता है। मैं कावा का आज बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जिसके प्रति आप सभी बहुत अच्छे से आप जानते हैं, और इस सब्जेक्ट को आपने आज के लिए लिया है। और समाज में ये जो लैंगिक असमानता है, ये सोच समझकर बनाई हुई एक ऐसी खाई है जिसमें समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। कानून हैं, हमारे कानून बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनके बावजूद भ्रूण हत्या होती है, शिशु हत्या होती है, क्योंकि वो लड़की है। ये सब हो रहा है। कई बार कुछ आंकड़े सामने आते हैं, कई बार आंकड़े छुपा लिए जाते हैं। मैं आपके सामने कुछ थोड़े आंकड़े रखना चाहूंगी। अगर आप देखें तो हर साल 1,20,00,000 लड़कियों में से सिर्फ 30% है जो अपना 15वां जन्मदिन मना पाती है। ज्यादातर उसके पहले ही खत्म हो चुकी होती है। अगर विश्व के समस्त देशों में महिला शिक्षा के आंकड़ों को देखें तो भारत का स्थान 112वां है। अगर इन आंकड़ों को साधारण भाषा में समझें तो 10 लड़कियां अगर कक्षा 1 में प्रवेश लेती हैं तो कक्षा 5 तक पहुंचते पहुंचते 6 लड़कियां ही बचती हैं, और जब वे माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचती हैं
सिर्फ 5 ही बचती हैं और कॉलेज जाते जाते सिर्फ हर 100 बच्चों में 100 युवा जो कॉलेज में गए हैं उनमें से सिर्फ 4 या 5 लड़कियां होती हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद ही देख सकते हैं कि लड़कियों के संग क्या समानता दिखाई जा रही है। अगर आप कामकाजी महिला को भी देखें तो उनका जितना भी काम है, एक तरफ कामकाजी महिलाएं हैं, उनको 4% से ज्यादा उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप उनको नहीं पाएंगे कि बड़े ओहदों पे पहुंच पाती हैं। और उन महिलाओं का तो कहना ही क्या जो गाँव में, खेतों में या अपने परिवारों में काम कर रही हैं, अब वो तो अनएक्नॉलेज्ड लेबर मात्र ही रह जाती हैं। और जबकि मुझे बड़ी खुशी है इस बात से कि अभी इसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है, शायद हाउसवाइफ्स के काम को भी एक्नॉलेज किया जाएगा पब्लिकली, जो कि बहुत अच्छी बात है। सबसे खतरनाक आंकड़ा जो मुझे लगता है वो ये बताता है हर 3 महिला में से कम 1 हिंसा का शिकार है। यह चारों तरफ फैला हुआ है। पॉलिटिकल लीडरशिप में आप देखिए तो रिजर्वेशन के बावजूद अगर कोई महिला आ जाती है तो उनका होता है राज्य को करने का तरीका या उनके पति का होता है, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। कोविड ने तो इतना और खराब कर दिया है ये सारी स्थितियों को। पूरी दुनिया में 24 करोड़ से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां सेक्सुअल और फिजिकल वायलेंस की शिकार हो रही हैं, जो कि यूएन की एक रिपोर्ट ने बताया है। हिंदुस्तान में भी अगर देखें तो 6 लाख से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाई से निकाल लिया गया है और वो या तो डोमेस्टिकेशन कर दिया गया है या उनको ट्रैफिकिंग कर दी गई है, नहीं तो उनकी अर्ली मैरिज कर दी गई है। तो इस समानता को हम कैसे दूर करें और ये क्यों जरूरी है? ये अधिकार है, ये गर्ल का राइट है, हमें इसे किसी तरह भी उनको ये राइट दिलाना होगा। महिलाएं भी सबला हैं। सबसे पहले यह भ्रांति महिलाओं के दिल से भी और समाज के दिल से भी निकालनी होगी। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। आज कोई भी महिला इसके लिए तैयार नहीं है। हर महिला अपने आप को सबला बताना चाहती है और वो समाज के नजरिए को बदलना चाहती है। उन्हें भी पूरा अधिकार है, लड़कों की तरह उन्हें जीवन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का अधिकार है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आई जस्ट विश कि उसमें एक लाइन ये भी जुड़ जाए, आत्मनिर्भर महिलाएं। अगर ये होगा तो अपने आप ही हमारा समाज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। सशक्त महिला का एक अर्थ यह भी है कि सशक्त सजग परिवार। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप एक बच्चे को पढ़ाते, एक लड़की को पढ़ाते, पूरा परिवार पढ़ लेता है, पूरा परिवार सजग हो जाता है। इसके लिए हमें बहुत ही सशक्तिकरण के लिए बच्चों को पढ़ाना होगा। एक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के में बताया गया है, स्कूल का 1 साल एक महिला को 12% की औसत से उसकी इकोनॉमी को बढ़ा देता है और वो अपने परिवार को गरीबी से दूर ला पाती है। इसी तरह उसमें आगे कहा गया है, अगर सेकेंडरी एजुकेशन में, जो कि मैंने अभी बताया था कितना खराब आंकड़ा है हमारे देश में, अगर सेकेंडरी एजुकेशन में महिलाओं की संख्या सिर्फ 1% अगर हम बढ़ाते हैं तो देश की इकोनॉमी में 0.3% इकोनॉमी को फायदा होता है। इन मुद्दों को देखते हुए आप समझ ही सकते हैं कि महिलाओं को पढ़ाना, उनकी वेलफेयर का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। दुख की बात तो यह है कि जब वेलफेयर की बात होती है तो बात सिर्फ प्रतिबंधों पर आकर रुक जाती है। अकेले नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, रात में नहीं निकलना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, वैसे नहीं करना, हर चीज में दबा दिया जाता है। और चाहे वो खाना हो, पहनना हो, पढ़ाई हो, बाहर निकलना हो, खतरा है, अगले घर जाना है। आप सोचिए ना, ऐसे माहौल में कोई भी लड़की अपना स्व कैसे पहचानेगी। मेरे पास एक छोटी सी कविता है, हमारे ही एक बच्चे ने लिखा है, मुझे पुरुष के बराबर हक दिलाने की बातें चल रही हैं न जाने कब से, पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे, जमाना खराब है यह कहकर न जाने कितने प्रतिबंध लगे हैं मुझ पर अब तो, जब समानता मैं तब मानूंगी जब घर से अकेले कॉलेज जाने तक नहीं घूरेंगी मुझे जिद्द दृष्टियां एक टक, रात के अंधेरे में भी जब चल सकूंगी मैं बैखौफ, समानता तो तभी होगी जब नहीं सताएगा मुझे कोई खौफ, लड़की हो यह कहकर नहीं किया जाएगा कोई भेदभाव, भाई की इच्छाओं के आगे जबरन नहीं करना होगा स्वीकार मुझे कोई भी अभाव, सिर्फ कानून नहीं दिला सकता मुझे समानता का अधिकार, इसके लिए जरूरी है संकीर्ण मानसिकता का बहिष्कार।
संकीर्ण मानसिकता का बहिष्कार। आप देख ही रहे हैं, जब तक इस संकीर्णता को हम नहीं छोड़ेंगे, लड़कियां अपने दायरे से आगे नहीं निकल पाती। महिला सशक्तिकरण की बात बहुत ही स्ट्रांगली कही गई है। प्रियम्बल में भी जो मूल अधिकारों की जहां बात की गई है, राज्य को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी सकारात्मक भेदभाव महिलाओं के पक्ष में करने का मापदंड दिया गया है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? सामाजिक वास्तविकता तो बिल्कुल अपरीत है, अगर विपरीत है। यह जो गार्गी मैत्रेयी का देश था, मध्य युग में महिलाओं को बिल्कुल पीछे कर दिया गया, तरह तरह के शोषण हुए। महिला समानता व सशक्तिकरण का कार्य अगर देखा जाए तो फिर से 20th सेंचुरी में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के साथ ही शुरू हुआ। बहुत से राजनीतिक सुधार हुए और साथ ही साथ राजनीतिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक सुधार, महात्मा गांधी, अंबेडकर, राजा राम मोहन रॉय, सावित्रीबाई फूले, बहुत लोग, इन्होंने बहुत काम किया। वोट पे अधिकार, नौकरी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट्स गवर्निंग डिवोर्स एंड मैरिज, चाइल्ड केयर राइट्स, हेल्थ राइट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स तथा अन्य तरह के अधिनियम निकाले। अगर देखा जाए तो अधिनियमों की कमी नहीं है। मैंने कुछ ही अधिनियम यहाँ लिखे तो मैंने देखा 11 अधिनियम बन गए। अगर इन अधिनियमों को, इन रूल्स को ठीक से फॉलो किया जाए, मुझे नहीं लगता है कि फिर हमें महिला समानता या सशक्तिकरण के बारे में बात करनी पड़ेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, अनैतिक देश व्यापार रोकथाम अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, गर्भावस्था अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया, घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम, जिसको हम पॉश बोलते हैं। इस तरह से इतने इतने कानून हैं, लेकिन महिलाओं को ही नहीं पता कि उनके पास इतने अधिकार हैं और इतने तरह के कानून हैं उनकी रक्षा के लिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्हें इन कानूनों के बारे में उनकी जानकारी हो। यहीं से मैं अपनी संस्था उदयन केयर के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूंगी। ये संस्था, मैं इसकी फाउंडर हूँ और करीब 26 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था, 1994 में। उस समय महिला सशक्तिकरण ही सबसे ज्यादा दिमाग में था, लेकिन उससे भी ज्यादा था बालिकाओं का सशक्तिकरण। अगर बालिका सशक्त होगी तो अपने आप ही वो एक सशक्त महिला बनेगी। इस दिशा में जब मैंने जब रिसर्च करनी चालू की, बहुत सी संस्थाओं को देखा, तब मुझे पता चला कि जो बच्चियां हैं, जो अनाथ बच्चियां, वो किसी भी संस्था में जाती हैं, एक अनाथ बच्ची की तरह जाती हैं। जब वो 18 में हो जाती है, उनको निकलना पड़ता है उस संस्था से, एक अनाथ बच्ची की तरह ही निकल जाती हैं। न उनको कुछ पढ़ाया गया होता है, न उनको अपने अधिकारों का ज्ञान होता है। ये 26 साल पहले की बात बता रही हूँ। इसी ने मेरे दिल को बहुत ही ठेस पहुंचाई कि उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अ सेंस ऑफ बॉन्डिंग उनको नहीं सिखाया जाता। वो अपने परिवारों से बिछुड़ गए हैं। ये नया जो उनको परिवार मिलता है, वो उनको परिवार सा लगता नहीं है। तो हम लोग इस चीज को कैसे एड्रेस करें? तो हम लोगों ने जो उदयन घर बनाए, उदयन का मतलब है सनराइज। तो उदयन घर का में हम लोगों का आइडिया ये था कि हर बच्चे को सनशाइन मिले और वो जीवन में कुछ बन सके। अगर आप देखें तो हमारे 17 होम्स हैं। इन 17 होम्स में 4 होम्स बॉयज के हैं। आपको इससे भी जाहिर होगा कितनी लड़कियों को निकाला जा रहा है खुद के घरों से, लड़कों को फिर भी उनको अपने घरों में रहने का मौका मिल रहा है। तो इन घरों में हम लोग इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। और मेरी तरह 35 और मेरे मेंटर्स हैं जो इन बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, एक माता पिता की तरह। और इन बच्चों को हम लोग बिल्कुल अपने परिवार की तरह रखते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजते हैं। आप इतनी सारी महिलाओं को देख के तो मेरे मन में बार बार आ रहा है कि आप में से कुछ हमारे साथ मेंटर्स की तरह जुड़े, आए। अभी शायदा जी ने तो आते ही मुझे बताया, मैं आकर के आपके बच्चों के घर को जरूर देखना चाहूँ। आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप आइए और हमारी बालिकाओं का मनोबल बढ़ाइए। और इतने लोग जो मुझे सुन रहे हैं, हमारे दूसरा जो प्रोग्राम है शालिनी प्रोग्राम, जिसमें 9000 लड़कियां हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिनको कि हम लोग उनको पढ़ाई करा रहे हैं जिससे कि वो जीवन में कुछ बन सके। आप लोगों से भी मेरी यह इल्तिजा है कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, और अगर हमारे साथ नहीं तो अपने इलाके के जिन भी एनजीओज के साथ जुड़िए। जब मैं देख रही हूँ कावा का इतना सुंदर काम, उसी तरह मैं चाहती हूँ। और सीआरपीएफ के बारे में भी हमने इन दिनों में कई चीजें टेलीविजन में देखने का मौका मिला,
किस तरह नक्सलवादी जो क्षेत्र हैं उनमें आप लोग पहले से काम कर रहे हैं, इतना डिजिटल लर्निंग सिखा रहे हैं, महिलाओं को रोजगार उनको सिखा रहे हैं। और अभी तो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा जो कुछ दिन पहले, शायद 2-3 दिन पहले ही दिखाया गया था, रक्षिता बाइक्स, जो कि दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों से जो भी दुर्घटनाग्रस्त है उनको लेकर उनको फर्स्ट एड देकर उनको हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। एकदम मेरे मन में ख्याल आया, जिस तरह रक्षिता आपने चालू की है, क्यों नहीं दक्षिता वाहिनी भी चालू करें। और अभी जब हमने सुना मैडम को श्रीनगर से शिल्पा जी शायद नाम था ना, खिलाड़ू जी, तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर मुझे लगा कि आप सीआरपीएफ के सारे जवानों के उनके परिवारों के लिए है। मैं थोड़ा सा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा और आप बाहर निकलें और ये दक्षता आप बाहर भी बांटिए। ये सभी होगा जबकि अगर पूरा समाज, सब लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, हम अपनी बहनों को, बेटियों को, पत्नियों को पूरा मौका देंगे। अगर आप हमारे जो प्रोग्राम्स है उनमें देखें, हमारी लड़कियों ने इतना अच्छा किया है, सब इतना बढ़िया पढ़ रही हैं, पढ़ के कितनी लड़कियां तो पीएचडी उन्होंने कर ली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी जगहों से। और एक जो आदान हम लोगों के यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हर बच्चे को सिखाया जाए कि आप पैसिव रेसिपिएंट ना बने, कि खुद लेते रहें, आप जितना ले रहे हैं वापस दीजिए। तो हर बच्चे को हम लोग मेंटरिंग करके उनको सिखाते हैं कि आओ यू कैन गिव बैक। तो इसके कारण हमारे बच्चे इतना हमारी संस्था को सपोर्ट करने लगे हैं, और जो बच्चे हम अपने पाँव पे खड़ी हो गई हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जा रही हैं, मेरा उनको एक ही कहना है कि हमें अपने देश का आंकड़ा बदलना है। और ये आंकड़ा अब खाली हमारे से तो नहीं बदल सकता। हम लोग एक बहुत छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, 9,000 10,000 बच्चों तक हम पहुंच पाते हैं हर साल। लेकिन अगर हमारा हर बच्चा उसी तरह आगे बढ़ाएगा इस मिशन को, इस मैसेज को, बहुत जल्दी हमारे देश का आंकड़ा बदलेगा, जहां पर रियल में हम एक साथ जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं वे एक साथ कदम से कदम बढ़ा करके चल पाएंगे। मेरा, अगर हम लोग सब साथ चलते हैं तो मैं, क्योंकि इतने सारे परिवार और उनके सब जुड़े हुए हैं साथ में, मैं उनको 2-3 सिर्फ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगी। और वैसे तो एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है, जहां पर जब महिलाओं को थोड़ा भी साथ दिया गया, उनको थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया गया, वे कहां से कहां पहुंची हैं। माया विश्वकर्मा, जिनको कि पैड वुमन कहा जाता है, आप लोगों ने जरूर उनका नाम सुना होगा। उन्होंने मासिक धर्म के बारे में जो संकीर्ण विचार हैं, जो स्टिग्मास हैं, उनको दूर करने में मदद की। रानी रामपाल का नाम सुना होगा आपने, वो झोपड़े में पली बड़ी, फिर वे हॉकी की कैप्टन बनी। अगर इसी तरह गुंजन सक्सेना, उनके नाम से ही रोमांच होता है कि किस तरह से उन्होंने कारगिल में फाइटर प्लेन्स उड़ाए। तो हमारे पास इस तरह की महिलाओं की कोई कमी नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा, फुल विमेन क्रू जो कि न्यूयॉर्क से इंडिया फ्लाइट को लेकर आया, फुल विमेन क्रू। तो विमेन रियली हैव एवरीथिंग गोइंग विद देम। हम लोगों को बहुत कोशिश करनी है, सारी महिलाओं को कोशिश करनी है, हम सबों को मिलकर कोशिश करनी है, तभी हम वैसा भारत बना पाएंगे जो कि शायद पहले होता था, जबकि गार्गी, मैत्रेयी, वो वेद मंत्र वो भी पढ़ते थे और लोग भी पढ़ते थे। हम लोगों को उसी तरह से मेहनत करनी होगी। और किसी के पास भी अब बैठने का टाइम नहीं है, क्योंकि समय कम है और हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है। थैंक यू। धन्यवाद मैम। आपने आज के विषय पे बहुत ही सूक्ष्म रूप से आंकड़ों तथा अपने अनुभव के आधार पर इस विषय की महत्ता को हम सबसे साझा किया, और हमें निश्चित रूप से भरोसा है, उम्मीद है कि आपका ये मार्गदर्शन हमारे बहुत काम आएगा। क्योंकि अभी वेबिनार के माध्यम से हमारे लगभग 50 से ज्यादा स्टेशन पे सीआरपीएफ के कार्मिक एवं उनके परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा उन सभी स्टेशनों से कि वो मैम से आज के विषय के संबंधित कोई भी सवाल, आपका कोई भी ऐसा कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। एनी स्टेशन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
थैंक यू ऑल स्टेशंस। हम ये भी आग्रह करना चाहेंगे कि अगर किसी स्टेशन से कोई सवाल अभी नहीं है तो बाद में भी अगर इस विषय से संदर्भित कोई भी सवाल किसी स्टेशन का हो तो वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ताकि हम आपके मापू विषय के साथ दोबारा उपस्थित हो सकते हैं। अभी चूंकि हमारे कार्यक्रम का ये वक्त हो चुका है समाप्ति का, तो अब मैं एडीजी महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो डॉक्टर किरण मोदी को सीआरपीएफ के स्मृति चिन्ह भेजकर उन्हें सम्मानित करें। सर। थैंक यू सो मच। साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा केंद्रीय राज्य पुलिस व परिवार संस्थान कावा की तरफ से कि उनके कि वो कावा एक्टिंग प्रेसिडेंट से कि वो कावा के सभी सदस्यों के साथ कावा के स्मृति चिन्ह भेंटकर मैम को सम्मानित करें। अब मैं श्री समीर कुमार श्रीवास्तव कमांडेंट कल्याण शाखा से अनुरोध करता हूं कि वो कार्यक्रम की समाप्ति पे धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय श्री जुल्फिकार हसन, एडीजी हेडक्वार्टर एंड ऑप्स, श्री एमएस भाटिया, आईजी एडम, अतिथि वक्ता डॉक्टर किरण मोदी, श्रीमती तनुजा भंडारी, एक्टिंग प्रेसिडेंट कावा, वरिष्ठ अधिकारीगण, सीसी मेंबर कावा एवं वेबिनार से जुड़े अधिकारीगण, कार्मिक एवं उनके समस्त परिवार सदस्यों का मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सादर आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महानिरीक्षक महोदय श्री चारू सिन्हा के डोमेस्टिक एम्पावरमेंट के प्रेजेंटेशन एवं डॉक्टर मोदी द्वारा प्रस्तुत बेटियों को प्रोत्साहित करने संबंधी जानकारी आपके एवं आपके परिवार के लिए अवश्य लाभप्रद होंगे। मैम, आप सशक्तिकरण की बात कर रही थी, तो इस कावा रजत जयंती का हमारा सूत्रवाक्य ही सशक्त परिवार सबल राष्ट्र का आधार है। अंत में मैं पुनः आदरणीय श्री जुल्फिकार हसन, एडीजी हेडक्वार्टर ऑप्स, श्री एमएस भाटिया, आईजी एडम, अतिथि वक्ता डॉक्टर किरण मोदी, श्रीमती तनुजा भंडारी एवं समस्त लोग जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनको मैं इस व्यस्त समय से अपना इसमें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। जय। और अब मैं सभी को आग्रह करता हूँ कि फ्लोर पे एक छोटा सा जलपान का हमारा प्रोग्राम है।